Hello my dear students. In this part of video we will discuss about the lesson energy class 8 physics ICSE. In the previous part of video we have discussed about the work and work done and some numericals about the work done. But in this part of video we will discuss about the energy, kinetic energy and potential energy and the energy transformation and the power. So let's start. So what is energy? Friends, we have learned that the energy is a capacity to do work. What is energy? Energy is a capacity to do work. मतलब कुछ काम करने के लिए, कुछ वर्क डन करने के लिए which we required energy. हमें कुछ भी काम करना है तो मुझे क्या चाहिए? Energy is required. So we need energy to do any kind of activity or work. For example, to walk I need energy. While playing we need energy. While concentration doing the study we required energy. Even machine required energy to work. So we can say that all living and non-living things need energy for their functions. Now forms of energy. Energy exists in the many forms such as light energy, heat energy, sound energy, electrical energy, mechanical energy. So all are the types of forms of energy. Some forms of energy are stored and can be used whenever we need it. Now we are going to discuss about what is kinetic energy. So what is kinetic energy? The energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. मतलब क्या? मोशन के ऊपर डिपेंड है. So kinetic energy of the moving object depends on the mass of object and its speed. उसका mass क्या है and the velocity means उसकी velocity क्या है, उस पे depend है kinetic energy. So which is known as velocity. Velocity मतलब क्या? Speed. So the kinetic energy is given by the formula Ke means kinetic energy is equal to half mv square. So m is mass of that object and v means velocity of that object. Here the flowing water, moving a ball and moving a car, these are some examples of kinetic energy. Now we will discuss about potential energy. So what is potential energy? Potential energy of an object is the energy that is stored in it. मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर whatever the energy is stored. So for example water stored in a dam, stretched rubber band, जो rubber band हम stretch करके रखे हैं, अभी stretch करके मैं खड़ा हूँ. So in that rubber band, now you can see here in this stretching the energy is stored. That energy which are stored here, that energy is nothing but the potential energy. Stretched bow of this and compressed or stretched spring having a stored energy, so that energy is nothing but the potential energy. Okay, क्या है डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, बॉल मूव कर रहा है एंड फ्लोइंग वाटर. सो दीज आर द काइनेटिक एनर्जी. इसमें मास और वेलोसिटी इज डिपेंडेंट है. बट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल जो डैम है, डैम के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है वहाँ पे मूवमेंट कुछ है क्या? देर इज नो मूवमेंट बट दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. और वी कैन ऑल्सो से दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बाद में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा. मतलब यहाँ पे स्ट्रेच्ड बो जब मैंने वो छोड़ दिया तो बाद में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे जो वाटर स्टोर्ड है डैम में, तो वहाँ यहाँ पे मैंने गेट ओपन कर दिया तो यहाँ पे जो फ्लोइंग वाटर है दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वी कैन से दैट. ओके, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें मूवमेंट नहीं है, मगर वहाँ पे जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी. So the potential energy can be divided into the two categories. The first one gravitational potential energy and the second one elastic potential energy. So let's see one by one. The first of all, gravitational potential energy.
When an object is placed at a certain height from ground, it possesses gravitational potential energy. कौन सी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे रखा जाए, सपोज एक ऑब्जेक्ट को इस टेबल के ऊपर रखा जाए, सो दिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वन एनर्जी इज एक्ट कर रही है. यहाँ पे कौन सी एनर्जी एक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है. यहाँ पे अगर टेबल नहीं रहा तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा. मतलब उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है वो एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर एक लड़की बैठी है समझो, हैज़ अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass, that is m, at a height h is equal to the work done in lifting in the object that height. मतलब height is essential, height is required in the gravitational potential energy. So the force required to lift an object from the ground is nothing but the weight of object is equal to mg, and work done in lifting the object to a height h, it will be w is equal to, आपको मालूम है वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मगर यहाँ पे फोर्स क्या है? mg है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइट है. सो mgh, w इज इक्वल टू mgh. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? mgh रहेगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन हाइट. जब हाइट इंक्रीज हो रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल energy will also increases. Now elastic potential energy. When an object is compressed or stretched or bent, the energy is stored in the form of elastic potential energy. स्प्रिंग है या कौन सा ही रबर बैंड है, उसको हम जब स्ट्रेच करते हैं या कॉम्प्रेस करके रखते हैं या बेंड करके रखते हैं तो उसमें एक जो एनर्जी फॉर्म है, दैट एनर्जी ड्यू टू द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, दैट्स वाई उस एनर्जी को हम कह सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सो अ बो और द एरो वर्क इन द मैकेनिज्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल energy. The amount of potential energy stored in a stretched bow determines the distance traveled by the arrow upon release. मतलब मैंने जो बो एरो जब छोड़ने के बाद जब एरो कहाँ तक जाएगा उस डिस्टेंस के ऊपर उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड है. मतलब कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर थी, मतलब आफ्टर द रिजल्ट. ओके, सिमिलरली अ स्ट्रेच्ड वायर or the stretched or compressed spring etc or etc all possesses elastic potential energy. So elastic potential energy किस पे डिपेंड है? आफ्टर द रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट क्या आएगा? व्हाट इज द रिजल्ट? दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जब मैंने दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन, सपोज दिस इज अ पर्सन 1 एंड दिस इज अ पर्सन बी. इसने क्या किया? ये जो बो है इसको यहाँ तक मैंने खींचा. ये डिस्टेंस है समझो 1 मीटर है समझो फॉर एग्जांपल ओनली. तो यहाँ तक मैंने 1 मिलीमीटर तक खींचा. तो एरो आफ्टर एरो छोड़ने के बाद ये कहाँ तक गया समझो? 10 मीटर तक गया. ओके, नाउ यू विल सी हियर अनदर पर्सन. इसी एरो को, इसी बो को इसने 2 मीटर तक खींचा. यहाँ पे जो डिस्टेंस है कितना है? स्ट्रेच 2 मीटर है. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है आफ्टर स्ट्रेचिंग, 1 मीटर स्ट्रेच करने के बाद और 2 मीटर स्ट्रेच करने के बाद, तो ये किस पे डिपेंड है? इट विल बी डिपेंड ऑन आफ्टर रेजिंग द एरो. एरो कहाँ तक गिरा? यहाँ का इसका 10 मीटर पे गिरा और इसका कहाँ पे गिरेगा? समझो 2 मीटर है तो 20 मीटर पे गिरा. मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा किसकी है? इसकी है, इसकी कम है. सो इट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेचिंग. स्ट्रेच कितना हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है. तो ये किस पे डिपेंड है? आफ्टर रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, इसके ऊपर डिपेंड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी. गॉट इट? नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. द फर्स्ट वन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टोन विच इज केप्ट एट अ हाइट 300 मीटर. एच क्या है? 300 मीटर हाइट है. पोटेंशियल एनर्जी में हाइट इज इम्पॉर्टेंट.
सो हुज मास इज 20 ग्राम, मास कितना दिया 20 किलोग्राम. Assume acceleration due to gravity, that is g, is 10 meter per second square. So h is equal to 300 meter. So mgh, what is the formula of potential energy? mgh is equal to 20 into g की वैल्यू क्या है 10 है, and height is 300 meter. So 20 into 10 into 300, and what will be the potential energy? It will be 60,000 Newton meter. It will be 60,000 Newton meter. Now we will see another numerical. Calculate the kinetic energy. यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? Kinetic energy निकालना है. You know the formula. Kinetic energy half mv square. What is m? Mass. V means velocity. So to calculate the kinetic energy of the roller coaster rolling down with the speed. Speed दिया है यहाँ पे, मतलब क्या? Velocity दिया है. V is equal to 5 meter per second. And the mass of roller, mass is given also. Mass of roller is 2000 kilogram. So what is the formula? K is equal to half m square. So put the value of m and v square. Okay, so 2000 into 5 into 5. Why 5 into 5? V square, that's why v into v. So 5 into 5 and 2000 into half. So the value will be 25,000 joule. This is the kinetic energy of this roller coaster. Now we will discuss about the power. Now what is power? The rate of doing work. Rate of doing work. Work doing का rate क्या है? That is called as power. उसको हम power कहते हैं. So if W मतलब क्या? Work is the amount of work done in the time t, then power is given in the expression. Which expression? Power is equal to work upon time. Work is nothing but the energy. So energy upon time. So what is power? W upon t, or power is equal to energy upon time. So power P, इसका SI यूनिट कितना है? क्या है? वैट. वैट में हम कहते हैं, वैट मतलब W अपॉन टाइम. पावर मतलब कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ. अगर कम टाइम में ज़्यादा वर्क डन हुआ तो पावर ज़्यादा है. अगर किसी काम के लिए, किसी वर्क डन के लिए टाइम ज़्यादा ले रहा है और वर्क कम हो रहा है तो वहाँ पे पावर उसका कम है. तो ऐसे हम वैट में पावर का SI यूनिट है वैट. सो विच इज इक्वल टू द जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड मतलब J पर S डिवाइड बाई S इज नथिंग बट द W वैट. ओके, वी कैन राइट. अ बॉडी इज सेड टू बी हैव 1 वैट. अगर एक बॉडी की पावर कितना है? 1 वैट है. इसका मतलब ये हुआ कि दैट बॉडी परफॉर्म वर्क 1 जूल इन 1 सेकंड. ओके, एक बॉडी का पावर अगर समझो 1 वैट है तो उसका मतलब क्या है? वो बॉडी या वो मशीन या समथिंग वर्क 1 जूल इन 1 सेकंड. 1 जूल में, 1 सेकंड में 1 जूल वो काम कर रहा है, मतलब उसका पावर है 1 वैट. दिस इज अ सिंपल पावर. 1W इज इक्वल टू 1J अपॉन 1S. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड पावर. एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या है? एनर्जी मतलब क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क. कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए मुझे एनर्जी लगती है. मगर पावर मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. काम करने के बाद रिजल्ट, मतलब मेरा काम करने की क्या क्षमता क्या है मेरी, दैट इज कॉल्ड एज पावर. सो द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, बट द SI यूनिट ऑफ पावर इज वैट. ओके, ये जूल है. Energy can be transferred from the one form to another. Energy can be transferred from one form to the another. It measures the rate of energy transfer. Power क्या करता है? Power transfer की rate क्या करता है? Measure करता है. So this is the difference between energy and power. समझ में आ गया? Energy मतलब क्या है? Capacity to do work. Capacity to work मतलब कितनी energy मुझे required है कुछ काम करने के लिए. मगर power क्या है? कितने टाइम में मैं कितना काम कर रहा हूँ. दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड पावर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. तो वर्क और एनर्जी में रिलेशन क्या है? वी लर्न दैट द एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क. अभी हमने पढ़ा है कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है. एनर्जी नथिंग बट द कैपेसिटी टू वर्क. काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. सो द एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल. When we do work, energy is converted into the work. अगर हम काम करते हैं तो whatever the energy
मुझे लगी है उस काम करने के लिए, सो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क, वो एनर्जी काम में बदल गई. सो सिमिलरली वर्क डन ऑन अ बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनर्जी. सो वर्क डन भी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, उसको कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, विच स्टेट दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी or by the body is equal to the change in its kinetic energy. So that's why W is equal to KE2 minus KE1, where W is nothing but the work done. KE1 मतलब क्या है? KE1 and KE2 initial and final kinetic energy. This is KE2 मतलब final and this is a initial kinetic energy. This is a final kinetic energy. And the result is W. W is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. The result will be W. So thank you my dear student. This is all about the lesson energy. If you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you.